Hello 10th standard. Let us continue with our lesson number 2 of history. We worked with one video, almost introduction part of that lesson. So today we will continue discussing about different art skills of Indians and which comes as traditional handicraft and fine arts. We were on page number 8 talking about art clay work. Let's read and go on with explanation of this. Man and clay have been closely associated since ancient time. The whole life of man revolves around it from the cradle to the grave. Before the invention of metal, clay things were used abundantly. Now, so many things like मिट्टी की ही बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग बनाते थे बिफोर इन्वेंशन ऑफ मेटल आया, उसके बाद काफ़ी चीज़ें मेटल की बनने लगी, लेकिन तब तक तो लोग क्ले के ही यूटेंसिल्स, स्टोरेज यूटेंसिल्स, बिग ड्रम्स एक्सेट्रा, और टॉक अबाउट सो मैनी अदर थिंग्स, इवन हाउसिंग सिस्टम ऑल्सो मेटल का ही बनाते थे, सॉरी क्ले का ही बनाते थे, राइट. सो राइट फ्रॉम क्रेडल मतलब वो छोटे से बच्चे का झूला, राइट, उससे लेकर ग्रेव तक, वी कैन टेल कब्र, राइट, कब्र तक क्या होता था, क्ले का ही मोस्टली यूज होता था, राइट. देन नाउ which toys they were making of clay, like here the line is written that clay was being used abundantly. So which things were made by clay is mentioned here. Toys, pots, pitchers, earthen lamps, clay stove, that is chula, clay ware were made by the potters to store grains. Milk, ghee, curd and buttermilk etc. were stored in clay ware. Okay, वी कैन टेल बॉक्सेस, आजकल वो दूसरे एयर टाइट बॉक्सेस आते हैं जिसमें हम फूड स्टोर करके रखते हैं. तो अर्लियर पीपल यूज टू स्टोर देयर फूड इन क्ले वेयर्स. ओके, देन मैक्सिमम किचन वेयर्स वर मेड अप ऑफ क्ले. द वॉल्स ऑफ द हाउसेज, kubas, that is huts, were plastered by the pasting of cow dung and clay. cow dung, गोबर का लेप लगाकर वो दीवारों के ऊपर भी लगाते थे, and they were just decorating their houses with the help of cow dung and clay. We have got many clay utensils of red color that belonged to Lothal, Mohenjo-daro and Harappan culture of ancient time. Potter's wheel is considered to be the best device for clay work in ancient India. In present time also we can see garba pitcher having holes containing earth lamp inside in Navratri. So आजकल भी clay के pots वगैरह आजकल भी लोगों के घरों में देखने को मिलते हैं. And mostly example is given about that garba, that is गर्भदीप, जिसमें दिया जलाकर रखते हैं और नवरात्रि में गरबा किया जाता है, right. That thing is made up of clay nowadays, but पहले के डेज में लोग क्ले का ज़्यादा यूज़ करते थे. वो एविडेंसेस से पता चलता है जो अर्थ को डिग करने के बाद कुछ प्रूफ्स मिले थे, लाइक टूटे हुए बर्तन वगैरह, वो सब मिट्टी के बने हुए थे. आइदर यू टॉक अबाउट मोहनजोदारो's टाइम, हरप्पन सिविलाइजेशन टाइम, और यू टॉक अबाउट लोथल. तो वो सब वहाँ से जो भी एविडेंसेस मिले उससे यही पता चलता था कि ज़्यादातर लोगों ने क्ले के आर्टिकल्स यूज़ किए हैं उस वक्त, राइट. इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग the baked utensils of baked clay as well as unbaked clay, that is terracotta, since ancient time. This is known by seeing remains of old and handmade clay utensils found from Nagarjuna Konda in South India and Lagnaj that comes in Mehsana district.
सो ना ही हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड लोथल एंड मोहनजोदारो, बल्कि साउथ इंडिया साइड में भी और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में भी एविडेंसेस पाए गए थे, जिससे पता चलता था कि या तो मिट्टी के बर्तन बनाकर फिर उनको आग में अच्छे से सेकना, दैट इज बेक्ड यूटेंसिल्स मेड बाय बेक्ड क्ले। ओके, तो उसको अच्छे से सेकना एंड देन बाद में वो बर्तन यूज़ करने, या फिर सिंपली मिट्टी के बर्तन बनाकर यूज़ करने। तो ऐसे सारे भी एविडेंसेस मिले थे इन साउथ इंडिया साइड एंड इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। ओके, moving ahead on page number 9, talking about art of weaving. The art of making long threads using small pieces of cotton from cotton balls and joining them together is called art of spinning. See, cotton ball छोटी सी होती है, उसको you might have heard the name of चरखा, right? वो चरखे में एक साइड से घुमाते रहते और दूसरी साइड से एक नीडल जैसा होता है जिसमें वो थ्रेड बनना शुरू होता है और वो थ्रेड स्पिन करता रहता है, राइट? तो दैट कॉटन दे जस्ट टेक अप लाइक दिस दैट कॉटन एंड देन अगेन टेक कॉटन। तो वो छोटे से बॉल से थ्रेड बनाना, फिर दूसरे बॉल का थ्रेड उसमें जॉइंट करना, ये भी एक स्किल है। ओके, you know, during my childhood I had really tried this because living in villages में किसी ना किसी के घर पे तो ये होता ही था। तो I had tried this but I was not able to do this. I just did one, but after that joining the second one was not possible from my side. That was the thing, but interesting है, ये एक बहुत ही अच्छी कला है लोगों में जो ऐसे थ्रेड बना लेते थे कॉटन से, right? Now we all know that Gandhi ji has given it a special importance as a cottage industry and joined it with Swadeshi to make us self-reliant under the banner of freedom movement, which has created a new history. Freedom movement में गांधी जी ने भी सबको बोला था कि they have to go on with self-reliant, आत्मनिर्भर रहे एंड अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स ना खरीदें और घर पे ही वो मतलब फैब्रिक बनाकर, कपड़ा बनाकर घर में ही अपना मतलब दे कैन गो ऑन वेयरिंग बाय मेकिंग कॉटन थ्रेड्स एंड ऑल, इट विल बी ईजी। इसीलिए वो खादी के प्रोडक्ट्स बहुत चले थे उस वक्त। ओके, सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट वाइल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, राइट? And it had created really a new history. Okay, that was about art of weaving. Now art of weaving में there one comes about hand weaving, हाथों से बनाया हुआ। Okay, since ancient time India is known for its textile know-how. It is well known that the whole piece of cloth of a particular size, taka, of fine muslin of dhaka could easily pass through a ring and could be adjusted in a matchbox. Now how interesting ना, like whole dhaka, आप कभी भी फैब्रिक लेने जाओ, कपड़ा मटेरियल लेने जाओ शॉप में, तो you might have see cloths kept by rolling on स्टिक के ऊपर, लाइक ऐसी कोई स्टिक होती, स्टिक के ऊपर वो रोल किया हुआ होता है। आप उसमें से 1 मीटर लो, 2 मीटर लो, 3 मीटर लो एंड आफ्टर दैट रोल इज़ केप्ट ऑन साइड। सो वो पूरे का पूरा क्लॉथ, अगर हम मसलिन मटेरियल की बात करें, इट इज़ सो सॉफ्ट मटेरियल, सो लाइट मटेरियल दैट इट कैन पास फ्रॉम वन स्मॉल रिंग और द होल मटेरियल, होल फैब्रिक कैन कम इन वन स्मॉल मैच बॉक्स। ओके, मोर ओवर carpet, galicha of several regions, knitting work on attires and artistry, etc. occupied the prominent place. Among them, Patola of Patan, Kanjivaram and Banarasi sarees, Bandhani of Rajasthan are unique identity of India. ये सारे हैंड वीविंग है, यू नो,
हाथों से बनाई हुई चीज़ें, कारपेट्स वगैरह भी हाथों से बनाए गए। टॉकिंग अबाउट डिफरेंट साड़ीज़ एंड ऑल। ओके, सो बहुत सारी यूनिक चीज़ें कपड़ों में, मटेरियल, फैब्रिक में बहुत सारी चीज़ें हैंड वीविंग करके रेडी किया जाता था। ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी era, Gujarat had progressed in this field. During the reign of Siddharaj Jai Singh, many artisans, weavers came and settled in Patan. The patolas of Patan became world famous due to their skill. So पाटन गुजरात में जब सोलंकी टाइम चल रहा था, तब जो राजा था सिद्धराज जय सिंह, उनके राज्य में बहुत सारे वीवर्स को अपना आर्ट दिखाने का, अपना कैपेबिलिटी दिखाने का मौका मिला। एंड पटोला ऑफ पाटन जो है वो बहुत ही फेमस था उस वक्त का। नाउ दिस आर्ट ऑफ पाटन इज मोर देन 850 years old. Only handful of artisans have the skill for such a complicated and time-consuming art. So कुछ ही आर्टिसन, ये हर एक आर्टिसन के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसमें टाइम बहुत लगता है। हाथों से कोई भी चीज़ बनाने जाओ टाइम तो लगता ही है। So कुछ ही आर्टिसंस हैं जो इतना बेहतर वर्क कर सकते थे। The skillware produced in Patan is called patola of the silkware produced in Patan is called patola of Patan. It means weaving. This type of sari is designed in such a manner that it can be worn on either side. इस तरह की साड़ी बनाते थे कि वो किसी भी साइड को पहनो। लाइक अभी तो मतलब कपड़ा सीधा है या फिर वो कपड़ा ऑपोजिट साइड में है तो वो पता चलता है, राइट। इवन साड़ी का भी अगर देखा जाए तो इफ़ आई टॉक अबाउट पल्लू, जो साड़ी का बॉर्डर होता है एक साइड पे, जो लेडीज़ यूज टू कीप इट बैक और इन फ्रंट, तो वो एक ही साइड होता है, राइट। बट पटोला ऑफ पाटन की ये खासियत थी कि आप किसी भी साइड पहनो, इट विल बी गुड एंड इट विल बी comfortably worn. This type of patola variety has a good durability, that is लॉन्ग टाइम तक चलती थी ये सब साड़ीज़ वगैरह, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक, ओके, जल्दी ख़राब नहीं होती थी। एंड इट्स ओरिजिनल कलर रिमेन्स इंटैक्ट, उसका ओरिजिनल कलर हमेशा अच्छा ही रहता था, फेड नहीं होता था जितनी मर्जी बार वॉश किए। देयर इज़ अ सेइंग इन द सेम रेफरेंस, नाउ दिस इज समथिंग सेड इन गुजराती, the design laid down in patola shall never fade even if the cloth may be torn. That is उसके कपड़े, उसके जो कपड़ों का कलर था वो फेड बिल्कुल नहीं होता था। हाँ, वो कपड़ा फट जाता था लेकिन उसका जो कलर था वो इतना ही परफेक्ट था कि वो फेड नहीं होता था। ओके, now next is art of embroidery. We will continue from our next video. Till this, please go through your page number 8 and 9, or I can say go through with both the videos related to this lesson. As I repeat, there will be so many objective questions can be asked from this lesson. Okay everyone, thank you.